Hi, I'm Mayur Aldar and I welcome you all in Dr. Sabath Academy. So, as we know that MHT CET 2025 dates were announced back in November. They are to be conducted from 19th of April to 27th of April. So, we have just approx Feb, March, 2.5 months, and that are enough for MHT CET preparations. I know you were to have exams right now, your 12th examinations, but still some of the time you can dedicate for MHT so that you may score well in the subject. Okay, so I am here to teach you physics. I'll be taking one shots and PYQ session. This will be combo of them, and that is enough for you to qualify or to get the good or best college in Maharashtra through MHT. Because if you will see the papers, PYQs, you will see the repetitive questions, the same type of questions. So if you will do the PYQs, you will definitely score above 40 marks. Okay, out of 50, you will definitely score above 40. So the same thing I am going to do. I am going to teach you some basics concepts which are necessary and lots of PYQs. Okay. So we will start with 11th standard and then we will jump to the 12th standard. So because you are going to have examinations till March, I am going to cover 11th topic so that you won't miss the 12th topics. Okay? And trust me, if you do just PYQs and the concepts which I'll teach, then definitely you are going to go for the best college. Okay? So without being late, let's start with our first topic. So first topic from 11th standard is motion in plane. We are not going to go in depth of it. We are just going to see overview. Okay, so from that first is motion in 1D. Then we have motion in 2D and then circular motion. 1D means linear motion of car which you can see here. Motion in 2D is projectile motion. If you are in cricket, then throwing of ball is nothing but projectile motion and it is motion in 2D. In circular motion, mot ka kua. Okay, that is example of circular motion. So let's see motion in 1D. So from here we are going to start with the chapter that is motion in 1D. आपको ये जो स्क्रीन दिख रही है ये पूरा 1D का सार है, ठीक है, ये गीता का सार है। तीन इक्वेशन है जो आप 9 से पढ़ रहे हो। फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड थर्ड इज v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, जहाँ पे v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम पीरियड एंड s होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। Now what is use of these three equations? When you know any three terms from any equations, okay, यदि आपको v पता है, u पता है, a पता है, you have to remove t. So you can use these expressions. In this way you have to use these expressions. बस आपको इतना ध्यान रखना होता है, you have to consider here science, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे से आपको साइंस पता होना चाहिए, मतलब कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। इन दैट वे वी विल डिस्कस इन इट फर्दर। तो ये तो हमने पहले भी देखा है, v होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ओके, फॉर इंस्टेंटेनियस वी राइट d, इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पहला होता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी विच इज फॉर एवरेज एक्सेलरेशन एंड सेकेंड इज dv बाय dt विच इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है कि एक सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। दैट चेंज इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। नाउ वी विल स्टडी देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ यदि आपको ग्राफ दिया है, ठीक है, देन यू हैव टू वेज टू कैलकुलेट वेलोसिटी। यदि आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है देन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अब ये कहाँ से आ गया, हमें पता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, ठीक है। नाउ व्हेन यू विल शिफ्ट दिस dt ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा a dt इक्वल्स टू dv, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा फिर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt।
अब वेलोसिटी यदि आप जीरो से शुरू कर रहे हो देन इट विल बिकम v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। यहां से ये इक्वेशन आता है, ठीक है। सिमिलरली यदि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है तो उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, उसका जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होती है। सिमिलरली इट इज फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो, दैट ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम विल गिव यू स्लोप, और वो जो स्लोप होगा वो होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब यदि आप डेल्टा y मतलब y एक्सिस पे डिफरेंस लोगे तो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, और x एक्सिस पे डिफरेंस लोगे तो वो टाइम का डिफरेंस आएगा। एंड यू नो दैट डी वी बाई डी टी इज ऑलवेज एक्सेलरेशन, इसलिए स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू एक्सेलरेशन। और यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है देन ऑल्सो आपके पास वो जो इनिशियल इक्वेशन था v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, सेम जैसे वेलोसिटी के लिए किया था, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इट बिकम्स एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, इट इज एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब अभी जो हमने जो टॉपिक्स किए थे कौन से, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो तीन इक्वेशंस, और फिर एरिया एंड दूसरा था स्लोप, उसके बेसिस पे वी हैड अप्रॉक्स 7 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। सो वी विल सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज MHTCT 2021 PYQ। Two bodies A and B start from the same point at the same instant and move along a straight line। मतलब A और B दोनों सेम ही पॉइंट पर है इनिशियली जब शुरुआत कर रहे थे, एंड दे आर गोइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों भी स्ट्रेट लाइन में जाने वाले हैं, ठीक है। ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, मतलब ए जो जाता है वो एक्सेलरेशन ए से जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो शुरुआत की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 है, ठीक है। एंड बी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी, मतलब बी के पास एक्सेलरेशन 0 है लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है। अब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन का काम ही क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। उसके बाद क्या बोला है, दे मीट आफ्टर टाइम t, मतलब दोनों एक साथ मिलते हैं, कब मिलते हैं, t टाइम के बाद, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल गए, सेम डिस्टेंस पे आ गए। द वैल्यू ऑफ t इज, तो आपको t निकालना है। अब यदि आप देखोगे फर्स्ट, इसमें आपके पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, मतलब वो पता है आपको, एंड t पता है, ठीक है, मतलब t निकालना है। लेकिन एक बात यहां से आप समझ सकते हो कि दे मीट एट आफ्टर टाइम t, जब दोनों मिलेंगे, दोनों इनिशियल पोजीशन सेम थी दोनों की, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दोनों में, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। जो जो ए डिस्प्लेसमेंट करेगा वही बी भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हम देखते हैं ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यू तो 0 है यहाँ पे, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है ए, टी स्क्वेयर, ठीक है। अब टी निकालना है, यही से निकालेंगे हम। और दूसरे केस में क्या है, बी में एक्सेलरेशन 0 है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज u इट इज प्रेजेंट, सो s इक्वल्स टू u, जो यहाँ पे v है, ut प्लस हाफ, a तो 0 है, t स्क्वेयर, ठीक है। तो जो a का डिस्प्लेसमेंट है वो तो b के डिस्प्लेसमेंट के से बराबर होगा, ठीक है। वही तो उन्होंने बोला है मीट आफ्टर अ टाइम, तो a का डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। टी टाइम में a का डिस्प्लेसमेंट है हाफ ए टी स्क्वेयर, और उसी टाइम में b का डिस्प्लेसमेंट है v इंटू टी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल है। अब टी टी काट दोगे, यहाँ पे चलेगा लेकिन कई बार प्रॉब्लम आता है, ठीक है।
इसके दो रूट्स हो गए, कौन से दो रूट्स हो गए वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैथ्स कितना खूबसूरत है देखो। वी टी इस साइड शिफ्ट करेंगे, हाफ ए टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, टी कॉमन ले लो, v माइनस हाफ ए टी इक्वल्स टू 0। मतलब टी यहाँ पे टी स्क्वेयर है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो टी हो गए, ऐसे दो टाइम हो गए जब ए और बी दोनों एक साथ मिलेंगे, एक साथ हो गए। ठीक है, अब वो दो टाइम कौन से है? एक तो है t इक्वल्स टू 0, मतलब क्या? इनिशियल, जब आप शुरू करने वाले हो तब ए और बी दोनों साथ में हो गए, वो तो गिवन कंडीशन थी, मतलब मैथ्स ने में वो भी आंसर दिया है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होगी v इक्वल्स टू हाफ ए टी, और यहां से t आता है, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहां से t आता है t इक्वल्स टू 2v/a। ठीक है, मतलब सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे वो दोनों मिलेंगे, और उसके बाद फिर 2v/a, इतने टाइम के बाद फिर से वो मिलेंगे। और ऑप्शन कौन सा है करस्पॉन्डिंग? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में क्या आया? आपको क्या गिवन था यहाँ पे? एक्सेलरेशन बताया उन लोगों ने, ए का था ए, बी का 0 था, इनिशियल वेलोसिटी बताई दोनों की, टाइम टी के बाद कहाँ पे मिलेंगे वो निकालना था। ठीक है, सो हमने लॉजिक लगाया, दे विल मीट आफ्टर टाइम टी, बट उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो वी इक्वेट किया एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, अब ये सेकेंड क्वेश्चन। A player caught a cricket ball of mass 120 gram moving at a speed at 30 meter per second. If the catching process is completed in 0.2 seconds, the force of the blow exerted by the ball on the hands of the play. ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है। आप तो बोले कि वो लिया ही नहीं, बट ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, तो आपको फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्चुअल उसकी इनिशियल डेफिनेशन है फोर्स इक्वल्स टू dp अपॉन dt, जहाँ p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, बट ये ठीक है, आपको अभी नहीं लगेगा, आपको अभी बस इतना ही लगेगा, फोर्स इज मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है? मास दिया है 120 ग्राम, मास तो पता है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सो दे सेड दैट बॉल इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। तो फिर जब बॉल हीट करेगा डायरेक्टली आके यहाँ पे, तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और टाइम कितना लगा उसे? 0.2 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 30 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा? 0.2। ठीक है, तो फिर 30 अपॉन 0.2, 15, 150। ठीक है, एंड नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? मास। एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? 120 ग्राम, आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ ठीक है, क्योंकि फोर्स में जो आप मास इंक्लूड करते हो वो केजी में होता है, और क्वेश्चन में आपको उन्होंने ग्राम में दिया है। ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 150। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 इंटू 15, 15 टू 30, 15 16 17 18। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ? 180, ये 20 इंटू 10⁻³ तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन तीन जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, वो 18 न्यूटन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे कि देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड है, सबसे पहले फोर्स का और उसके पहले ये मोशन इन 1D में का। ठीक है, सो यू शुड आइडेंटिफाई, आपको पता लगना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से सवाल है, आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो इजी हो जाएगा। Now the third question is, a body covers half of its distance with speed u and the other half with speed v. The average speed of the body is। ठीक है, first analyze the question।
अब यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस कंसिडर, ठीक है, कंसिडर डिस्टेंस एस डिस्टेंस है, ठीक है, उसे पहले दो पार्ट में कट कर दो। द बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इज डिस्टेंस, मतलब s/2 जो डिस्टेंस है विथ स्पीड u, एंड द अदर हाफ, मतलब जो दूसरा s/2 है, विथ स्पीड v, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये s1 s2 कंसिडर करो, एंड s2 माइनस s1 इज s, जो हमने ये लिखा है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस s है, कंफ्यूज मत, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस तो पता है हमें s डिस्टेंस है, लेकिन टाइम चाहिए हमें। तो टाइम के लिए उन्होंने दिया है, क्या दिया है, जो शुरुआत का हाफ डिस्टेंस है वो उन्होंने u स्पीड से कवर किया है। मतलब आपको जो इक्वेशन पता है u इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यहाँ से आपको t मिल जाएगा क्योंकि u तो उन्होंने दिया है। तो फिर t क्या आएगा, t इक्वल्स टू डेल्टा एस इज एस अपॉन 2 इंटू यू यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, s/2 इंटू ये वेलोसिटी u, ये t1 हो गया। यहाँ से यहाँ आने तक उसे कितना टाइम लगा, s/2u। सिमिलरली जो यहाँ से यहाँ, मतलब मिड पॉइंट से एंड पॉइंट तक आने के लिए कितना समय लगा, v इक्वल्स टू s/2 इंटू टी, ठीक है, सही है ना। वेलोसिटी या फिर योग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया, s/2, और टाइम t लगा। फिर t यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ पे ये t2 हो जाएगा, t2 इक्वल्स टू s/2v, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है सेकेंड हाफ डिस्टेंस, उसे कवर करने में उसे s/2v समय लगा। तो फिर अब एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा s अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, मतलब टोटल टाइम कितना लगा वही तो निकालना है। ये t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2। सो s, t1 क्या है, t1 है u अपॉन, सॉरी s, एक सेकेंड, s अपॉन 2u प्लस s अपॉन 2v, ओके। ये क्या है, ये है एवरेज स्पीड। अब s यहाँ पे आ गया, ये s कॉमन निकालो, ठीक है। अब यहाँ से तो बेसिक मैथमेटिक्स ही करने वाले, और 2 भी कॉमन निकालो, s/2, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू, ये s और s कैंसिल हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ये पता होगा आपको शायद, ठीक है। तो 2 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा वो, v प्लस u अपॉन uv, और फिर से इसे ऊपर लेके जाओ तो होगा वो 2uv अपॉन v प्लस u। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपको ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, ये ट्रिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे डायरेक्ट, मतलब आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद u एंड अदर हाफ विद v, ठीक है। 3 डिस्टेंस हो गए, तो वैसे ही 3 डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, यहाँ पे प्लस t3 आ जाएगा, आपके पास यदि 3 डिस्टेंस है, ठीक है। एक डिस्टेंस u से कवर किया, दूसरा v से, तीसरा uvt, t ले लो, t नहीं m ले लो, m से कवर किया। देन वैसे ही निकालोगे जैसे u और v निकाला, और ऐड करोगे। बस कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो आपका s है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यदि वो 3 वेलोसिटीज से गया तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, मतलब s/3 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 इन दिस वे, ठीक है। सो ये आपको आइडिया आनी चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जिससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको अप्रोच डेवलप हो जाएगा, समझ भी जाएगा।
अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है लास्ट टू लास्ट जो क्वेश्चन देखा था हमने उसके साथ। देखो क्या दिया है, टू बॉडीज ए एंड बी मूव इन द स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन। बॉडी ए मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u, body b moves with constant acceleration a. When their velocities become equal, the distance between them is। उस वक्त क्या था, जब वो मीट हो गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, तब उस मतलब टाइम निकलना था, कौन से टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, जब उनकी वेलोसिटीज इक्वल होगी तब उन दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी बोला है उन्होंने, मतलब आपके पास जो इक्वेशन है कौन से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, उन दोनों में से यूज कर सकते हो। सो देखेंगे यहाँ पे कौन सा यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। सो यहाँ पे ए होगा, मतलब ऐसा डायग्रामेटिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते जाओ, मतलब आपको वो आसान हो। टू बॉडीज एंड बी मूव इन स्ट्रेट लाइन, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही u है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एंड b मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a, ये किसका है, b का है। फिर क्या बोला है, व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, वेलोसिटी बिकम मतलब डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है और वेलोसिटी भी आती है, वेलोसिटी तो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं ए के लिए देखते हैं, v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। अब ए की वेलोसिटी चेंज होने वाली है क्या, फाइनल लो इनिशियल लो, चेंज होगा क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज उसका एक्सेलरेशन ही 0 है। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना, अब एक्सेलरेशन ही खुद 0 है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो वेलोसिटी विल बी u फॉर ए। बी के लिए वैसा हो गया, नहीं, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर उसका फाइनल वेलोसिटी जो v स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस टू ए एस। ठीक है, अब उन्होंने मतलब इसका v क्या आएगा, अंडर रूट टू ए एस, और इसका v इक्वल्स टू u। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हेन देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल, मतलब ये v और ये v दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल्स टू u, सेकेंड है v इक्वल्स टू टू ए एस, दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, u इक्वल्स टू अंडर रूट टू ए एस। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए फिर, तो फिर दोनों साइड को स्क्वायर करते। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब s की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, दिस मीन्स s इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वही बता रहा हमें कि अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसमें क्या इक्वल था, उसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, डिस्टेंस इक्वल था, टाइम निकालना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्लिक होना चाहिए, आपके पास तीन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल है, तो आपको ये दोनों इक्वेशन, दोनों में से कौन सा भी एक इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपको टाइम दिया नहीं है, तो टाइम दिया नहीं है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। इन दिस वे यू हैव टू थिंक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत जल्दी होने चाहिए क्वेश्चंस आपसे सॉल्व, बिकॉज 100 क्वेश्चंस के लिए यू हैव, नहीं 90, 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यू शुड बी फास्ट एट द कैलकुलेशंस। So next question is, two trains each 30 meter long are traveling in opposite directions with velocities 5 meter per second and 10 meter per second. They will cross after. ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस मतलब दो कॉन्सेप्ट्स आए। फर्स्ट वन इज रिलेटिव मोशन एंड सेकेंड वन इज मोशन इन 1D। और ये MHT CET 2023 का क्वेश्चन है, 2022 का नहीं। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों ट्रेन्स चल रहे एक दूसरे पे रिस्पेक्ट में चल रहे, ठीक है, इसलिए वो रिलेटिव मोशन। ओके, सो रिलेटिव मोशन में क्या करना होता है आपको, जो एक, अब उसमें रिलेटिव मोशन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन चल रही है, ठीक है, सपोज ये एक है और ये दूसरा है, ये जा रहा 15 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यदि आपको कैलकुलेट करना है, इसके सपोज ए और बी है, मुझे ए के कुछ स्पेसिफिकेशंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आई वांट टू कैलकुलेट समथिंग टाइम और एक्सेलरेशन समथिंग एल्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैं खुद बी ऑब्जेक्ट हूँ। अब मैं खुद 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा हूँ, और मतलब मोशन है मेरी, और मैं एक ही मोशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, देन दैट विल नॉट बी एक्चुअल मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यदि आप खुद दौड़ रहे हो और आपका दोस्त भी दौड़ रहा है, और दोस्त का आपको मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, आप खुद दौड़ रहे हो तो आपको उसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिलेटिव होगी, ठीक है। तो आपको एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, आप खुद एक जगह पर स्टॉप हो, यू शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि ए और बी दो ऑब्जेक्ट से, मैं खुद बी हूं और मुझे ए के रिस्पेक्ट में मतलब बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी, इसका मतलब होता है बी खुद रेस्ट पे होना चाहिए। अब ये तो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो क्या करते हैं, बी को रेस्ट में लाते। अब बी को रेस्ट में कैसे लाएंगे, उसके जो भी एक्सेलरेशन होगा या फिर उसका वेलोसिटी होगा उसे जीरो कर देते। अब इसकी ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड है, उसको जीरो करना है तो -2 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड करने वाले, तो यहीं पे भी -2 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसकी क्या होगी, 15 - 2 13 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए की जो एक्चुअल वेलोसिटी है तो 13 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन मुझे फिर 15 मीटर पर सेकेंड क्यों दिख रही थी, क्योंकि मैं खुद 2 मीटर पर सेकेंड दौड़ रहा था, ठीक है, आई माई सेल्फ वॉज रनिंग 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसके लिए मुझे जो ए है उसकी स्पीड मुझे 15 मीटर पर सेकेंड लग रही थी, लेकिन एक्चुअल जब मैंने रुक के काउंट किया तो मुझे पता चला वो 13 मीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए होता है, ठीक है, मतलब आपको जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी होती है उसे रेस्ट पे लाना होता है। अब रेस्ट पे कैसे लाओगे, उसे जीरो करोगे, उसी नंबर से नेगेटिव साइन लेके माइनस कर दोगे तो वो जीरो पे हो जाएगा, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करनी है इस ट्रेन के सवाल में, क्योंकि दो ट्रेन चल रही है, दोनों अपोजिट जा रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, दे आर ट्रेवलिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये 30 मीटर की ट्रेन है और दूसरी टच होके है, ठीक है, दो पैरेलल ट्रैक से 30 मीटर, और ये भी 30 मीटर, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। अब उन्होंने पूछा है दे विल क्रॉस आफ्टर, दे विल क्रॉस आफ्टर मतलब क्या, मुझे ये पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब ये स्टार्ट से एंड तक ये खुद 30 मीटर है, मतलब वो बोल रहे ये जो लास्ट पॉइंट होगा, ये ये ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है ट्रेन बी का, वो ट्रेन ए के लास्ट पॉइंट से कब क्रॉस करेगा, ठीक है, कितना देर लगेगा ये पॉइंट को ये पॉइंट तक आने के लिए, मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ बी को 60 मीटर ट्रैवल करने में कितना देर लगेगा। 60 मीटर कैसे, ये खुद 30 मीटर है और ये खुद 30 मीटर है, बट उन्होंने एक कंडीशन ऐड कर दिया यहाँ पे, ए जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और बी इसके तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ हम किसी के भी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो बी को मुझे रेस्ट में आना चाहिए बी। अब रेस्ट में कैसे लाओगे उसे, अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखो, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर इट कि अब यदि कौन सा भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कंसीडर करना है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, और लेफ्ट साइड जा रहा है तो भी नेगेटिव। अब ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप खुद के भी मन से ले सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होगा।
लेकिन फिर आपको पूरा सिस्टम वैसे चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपको ये सिस्टम पता है, कार्टेशियन सिस्टम प्लस माइनस का, तो उसी से ही ट्राई करो, ठीक है। आई विल राइट इट प्रॉपरली हियर। तो यहाँ पे पॉजिटिव लोगे आप व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, व्हेन यू आर गोइंग टू लेफ्ट तो आप नेगेटिव कंसिडर करोगे, व्हेन यू आर गोइंग अप पॉजिटिव कंसिडर करोगे, व्हेन यू आर गोइंग डाउन नेगेटिव कंसिडर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में जा रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में जा रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। ये ए का है, ये बी का है। अब बी को रेस्ट में लाना है, बी को रेस्ट में लाना है। बी ऑलरेडी -10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी डायरेक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो बी है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसकी स्पीड यदि मुझे जीरो करनी है, ओके, वेलोसिटी जीरो करनी है, तो मुझे उसे +10 मीटर पर सेकंड से ऐड करना होगा ना, 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बी को ऐड किया है तो ए को भी ऐड करना चाहिए। ए को क्यों ऐड करना चाहिए, क्योंकि बी खुद -10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है। उसे स्टॉप करने के लिए हमने 10 मीटर पर सेकंड ऐड किया, तो ए को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ए की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम, ठीक है। आपके पास टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर और स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है 15 मीटर पर सेकेंड। आपको t चाहिए, तो जो बेसिक इक्वेशन है v इक्वल्स टू s बाई टी, तो t इक्वल्स टू s बाई वी। s क्या है 16 और v वेलोसिटी है 15 4 जा 60, तो टाइम आ गया 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझा, रिलेटिव मोशन, अभी यहाँ पे तो रिलेटिव मोशन आ गया था, ठीक है। यदि आपको किसी की भी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसे जीरो कर देना है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन हो वेलोसिटी हो, ठीक है, जो भी चेंज हो रहा हो उसे जीरो कर देना है आपको, ओके। ओके, अब ये सबसे मतलब फर्स्ट पीवाईक्यू आर सॉल्विंग ऑफ 2024, मतलब एक्चुअल पीवाईक्यू वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मतलब ये जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो 2024 के पहले नहीं आए थे। यदि आप पीवाईक्यू चेक करोगे, आई विल प्रोवाइड यू पीवाईक्यू, उसके जो डिटेल्स है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, लास्ट तक देखते रहना। अब मैं बता दूंगा कि 2024 के पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, 21 से 23 तक के पीवाईक्यू कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कुछ डाउट्स होगा तो मतलब आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो स्टे कनेक्टेड। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2024 के पहले क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे ग्राफ के बारे में, 2024 में पूछे गए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। और हाँ, वन मोर थिंग कि जो हमारे 2024 के क्वेश्चंस होने वाले उसकी सेपरेट सीरीज होगी, ठीक है। मतलब उसके पूरे क्वेश्चंस आई विल इंक्लूड देम इन वन वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम 21 टू 23 के करेंगे, मतलब वन शॉट प्लस 21 टू 23 के क्वेश्चंस। उसके बाद स्पेशल सीरीज ऑफ 24 क्वेश्चंस उसी टॉपिक के रिलेटेड, मतलब पूरा हो जाएगा इस तरह से आपका, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो केयरिंग फॉर यू, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फिगर शोज 4 पोजिशन टाइम ग्राफ्स फॉर द मोशन ऑफ बॉडी। द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली बाय एसटी ग्राफ। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सेकंड, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब हमने जो स्टडी किया था v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली केस p में s और t का ग्राफ दिया है, इसका स्लोप कितना है, tan 0 इज 0, स्लोप 0 है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट केस में तो वेलोसिटी खुद 0 है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
इसका स्लोप क्या है, 0 है क्योंकि वो 0 एंगल बना रहा। सेकेंड देखो Q, अब Q में कुछ एंगल बनाता होगा थीटा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सी में भी देख लो, ये थीटा कंसिडर करो, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज होता है क्या, नहीं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही रहता है। मतलब क्या, यदि ये स्ट्रेट लाइन है, उसका यदि मैंने स्लोप निकाला, ये 30 डिग्री है, और मैंने दूसरी और एक हॉरिजेंटल लाइन निकाली, तो ये भी उसके साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। मतलब क्या, स्लोप का जो स्लोप हो सॉरी जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो डिफाइंड होता है। मतलब एक 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 पॉइंट से आप स्लोप निकालोगे, हर एक पॉइंट पे वही स्लोप आएगा उसका, उस लाइन पे हर एक पॉइंट पे वही स्लोप आएगा, ठीक है। तो वैसे ही मतलब यहाँ पे तो स्लोप कांस्टेंट आ रहा, स्लोप कांस्टेंट आ रहा मतलब क्या, v कांस्टेंट हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब v इज नॉट कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट। अब v कांस्टेंट नहीं चाहिए मतलब क्या, हमें चेंजिंग ग्राफ चाहिए। मतलब वो कर्व भी हो सकता है, कर्व में क्या होता है, स्लोप चेंज हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कुछ, यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ पे दूसरा स्लोप है, स्लोप चेंज हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा। अब एल में देखेंगे स्लोप टाइम ग्राफ में, यहाँ पे ये एक थीटा हो गया, ये दूसरा थीटा हो गया, ठीक है, ये एक थीटा 1, ये दूसरा थीटा 2, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब आपका ऑप्शन आएगा थर्ड वन जो एल है, ठीक है। एंड दिस इज फोटो फ्रॉम एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते इस फॉर्मेट में। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ऑप्शंस हो गए, और ये आपको मतलब चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा उसका, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम 6 to 9 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 6 सेकेंड है और यहाँ पे 9 सेकेंड है। ये वाला 20 है, ये वाला 40 है। सॉरी, एक्चुअली विजिबल अच्छा नहीं है, बट आई गॉट दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। यदि क्लियर होगा वो भी आप मैं मतलब पोस्ट कर दूंगा, आई विल प्रोवाइड इट्स PDF, ठीक है। आई विल लेट यू नो ऑल दिस डिटेल्स इन द लास्ट, ओके। सो हाँ ठीक है, ये जो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, रिलेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसका मतलब ही होता है एरिया अंडर दैट कर्व, ठीक है। मतलब उस कर्व, उस टाइम के बीच में जो कर्व फॉर्म हो रहा, उसका एरिया क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है 6 to 9, इसके अंदर कौन सा क्या फॉर्म हो रहा, ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा, मतलब इसका एरिया चाहिए हमें। तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो पैरेलल साइड है उसका एडिशन, और उसके बाद इंटू हाइट। अब हाइट कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, मतलब ये होता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल को जो 90 डिग्री है वो यही है, ठीक है। तो फिर हाफ, ए क्या है, ए है 20 प्लस बी है 40 प्लस हाइट 6 है, 9 माइनस 6 3, क्या होता है हाफ इंटू 60 इंटू 3, 30, 33 जा 90, मतलब 90 मीटर उसने ट्रैवल किया है। या तो ऑप्शन है ये, इसका मतलब क्या है, ये जो बोनस क्वेश्चन होगा, ठीक है, सबको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते वो मार्क्स दे देते सभी को, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मतलब उन्होंने ग्राफ किसका दिया है, st ग्राफ दिया है, और वहां से क्या निकाल सकते हैं हम, वेलोसिटी के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज ds/dt, ठीक है। अब यहाँ पे दे फर्स्टली वी विल सी, यहाँ पे जो है वेलोसिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो ना स्ट्रेट है, मतलब tan थीटा जो 0 आएगा। यहाँ पे v कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी v कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ऐसे, मतलब यहाँ पे tan थीटा भी चेंज हो रहा, फर्स्ट ऐसे था फिर ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पे v नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे v नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये इस दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अब इसे और डीप में जाएंगे थोड़ा सा, थीटा निकालेंगे, थीटा 1 और थीटा 2,
तो सबसे पहले क्या है, फिगर ए एंड बी शो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये सही है। ए क्या है, ए तो रेस्ट पे है, और जो बी है इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बी तो पॉजिटिव आ रहा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज फिगर बी एंड सी शो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बी रेस्ट पे है क्या, नहीं है, मतलब ये गलत ही ऑप्शन है, आगे का देखने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में भी आपको वैसा ही करना है, ये पूरा एनालिसिस करते नहीं बैठना है। अब देखो ये क्वेश्चन, for the velocity time graph shown in the figure, distance covered by a body in last 2 seconds of motion is s1. What is the ratio of s1 to the total distance covered by it? ग्राफ ही दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion is s1. what is the ratio of s1 to the total distance covered by it? मतलब यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम का टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एरिया ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा है, बहुत ही ब्लर है, पूरा ही ब्लर है। यहाँ पे मैं निकालता हूँ फिर से, ठीक है। क्या है वो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, और यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। 1 से शुरू होता है, 3 पे 10 आता है वो, it goes to 10 at 3, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन से, मेरे तो नहीं आ रहे लेकिन है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये बी पॉइंट है और 7 पे सी पॉइंट है। अब उन्होंने क्या बोला है, जो लास्ट 2 सेकेंड्स में, मतलब 5 to 6 और 6 to 7 में जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो s1 है। अब वो डिस्टेंस कैसे आएगा, अब आप ये देख सकते हो, ये क्या फॉर्म कर रहा, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या फॉर्म कर रहा, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। उसका एरिया क्या होता है, एरिया ही तो निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो हाफ s1 निकाल रहे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ये 2 सेकेंड से 2 इंटू हाइट, हाइट क्या है 10, मतलब क्या आ रहा 10 मीटर, ओके। और जो टोटल एरिया है उसे हम s कंसिडर करेंगे, वो क्या है, दिस दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। वो क्या होता है, हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स कौन से है, ये वाले, सॉरी ये वाले होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो पैरेलल साइड कौन से, ये वाले। तो जो नीचे का बेस का जो पैरेलल साइड है वो कितना आएगा, 7 - 1 6, प्लस ऊपर वाला कौन कितना आएगा, 5 - 3 2, एंड हाइट, हाइट कितनी है 10 है, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट ये होती है, ये कितनी है 10 है। तो फिर क्या आएगा, हाफ इंटू 6 7 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 मीटर। अब उन्होंने इस दोनों का रेशियो विचारा पूछा है, सॉरी s1 और टोटल डिस्टेंस, तो रेशियो क्या आएगा 10/40 इक्वल्स टू 1/4, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे भी गलती से सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, वही है जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, जिसका ये ऑप्शन करेक्ट है, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये भी वही क्वेश्चन है, गलती से 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए स्लाइड में, ठीक है। इसका आंसर 1/4, ठीक है। आपको अप्रोच समझना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, वो 3 जो बेसिक इक्वेशन है उसके ऊपर बेस्ड है और ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और फिर उसमें से 2 हमने फोर्स और रिलेटिव मोशन भी उसमें उन्होंने डाला था, उसके बारे में देखे, ठीक है। तो टोटल हमने अभी तक 9 क्वेश्चंस देखे, ओके। तो नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिटार्डेशन कॉन्सेप्ट। अब रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट, ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। रिटार्डेशन में क्या होता है कि आप जो एक्सेलरेशन लगाते हो उसमें कुछ अलग नहीं होता। आप जो एक्सेलरेशन लगाते हो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है,
जैसे कि आपको ब्रेक लगाना, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब भी क्या होता है? रिटार्डेशन मतलब ब्रेक लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इनिशियली ये गाड़ी 15 मीटर पर सेकेंड से थी, बाद में जाकर 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ब्रेक दबाया था, मतलब रिटार्डेशन हुआ था। तो फिर उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि देखो, एक गाड़ी चल रही थी x मीटर पर सेकेंड से, उसने सिग्नल देखा, ठीक है, सिग्नल देखा ना, रेड हुआ था, तो फिर उसने ब्रेक लगाया, ठीक है, उसने क्या लगाया? ब्रेक लगाया। तो फिर उसने कभी कभार वो डिस्टेंस देते हैं, कितना कवर किया उसने डिस्टेंस, या फिर कभी कभार वो टाइम भी देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो है, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, ठीक है। मतलब उन्होंने दिया रिटार्डेशन, रिटार्ड हो रही है गाड़ी, तो फिर वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। ब्रेक सप्लाई किए इन दिस वे। रिटार्डेशन मतलब क्या? ब्रेक लगाना या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। सो इस पे बेस्ड हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक इन द सेंस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। रिटार्डेशन दिया है मतलब आपको कंसिडर करना होता है फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अब उस पर सवाल देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल है उसका। A car traveling at a speed u meter per second stops within a distance s when the brakes are applied. If the car is traveling at 2 meter per second, then the stopping distance is. अब ऑप्शंस देखो, कैलकुलेशन तो कुछ करना नहीं। अब उन्होंने क्या बोला है? जस्ट ग्रास्प द क्वेश्चन प्रॉपरली। कार इज ट्रैवलिंग स्पीड u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ इट इज ट्रैवलिंग विथ u मीटर पर सेकेंड, इट नीड्स एट डिस्टेंस टू गेट स्टॉप्ड, ठीक है। रुकने के लिए उसे एस डिस्टेंस लगता ही है। अब यदि कार की स्पीड ही ज़्यादा होगी तो फिर उस जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा उसका, ठीक है, ब्रेक्स तो सेम लगा रहे, मतलब जो डिसेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा वो तो सेम होगा, लेकिन स्पीड ज़्यादा है इस बार, तो फिर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम लगेगा। मतलब आपकी गाड़ी फास्ट है और आपने ब्रेक दबाया, या फिर आपकी गाड़ी स्लो है और तब आपने ब्रेक दबाया, दोनों केसेस में ब्रेक दबाने के बाद कितना डिस्टेंस डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो किस में ज़्यादा होगा? जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी उसी केस में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या होता है? ब्रेक दबाने के बाद कितने डिस्टेंस पे गाड़ी रुकती है उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो इट विल बी मोर देन एस। वो स्पीड ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो मोर देन एस। इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिया उन्होंने। अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स ऑन सीइंग द रेड ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर अहेड. At the time of the applying brakes, the vehicle was moving at 15 meter per second and retarding at 0.3 meter per second square. The distance covered by car in the first 1 minute after the application of brake. तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है वो देखते हैं। ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, ठीक है। एस दिया है उन लोगों ने, एस दिया है इन द सेंस कि सिग्नल कितने दूर है, सिग्नल कितना दूर है वो दिया है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद रिटार्डिंग एट एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, टाइम भी दिया है 60 सेकेंड्स, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का आपको देखना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो गाड़ी रुक रही, तो इससे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? एस निकालना है। एस के लिए फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। आपके पास ये कॉम्पोनेंट्स है, उसके लिए एस का ये फॉर्मूला यूज किया। यू क्या है? यू इज 15, टाइम इज 60 सेकेंड्स प्लस हाफ। ए क्या है? ए है 60, सॉरी ए है 0.3 माइनस 0.3, और समझ के लो थोड़ा सा, ठीक है। टाइम है 60, ठीक है। तो क्या आएगा? 15 6 90, 900, ठीक है।
माइनस, ये माइनस बाहर निकालो, 60 इंटू 60, 36 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10, सही है ना? हाँ, माइनस 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, एक सेकेंड, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0.3 मल्टीप्लाई किया मतलब इंटू 10 होगा ना, वो फिर 0 जाएगा, मतलब 900 माइनस 540 क्या होता है? 900 माइनस 540, 360, ठीक है, 360 बी ऑप्शन, समझा? तो ये क्वेश्चन देखो, अ व्हीकल मूविंग इनिशियली एट 15 किलोमीटर पर आवर comes to rest after covering 5 meter distance after applying brakes. If the same vehicle moves at 45 km per hour, then by applying brakes it will come to rest by covering a distance of. अब इसमें क्या करना है आपको, क्या आपको देखते क्या दिया है? व्हीकल मूविंग इनिशियली मतलब उसका यू दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग एस दिया है 5 मीटर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। The same vehicle moves at a 45 किलोमीटर पर आवर, फिर से u दिया है, देन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर s निकालना है, और v दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, अब देखो ये सॉल्व s निकालना है, देन यू हैव द इक्वेशन u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2as, सो सॉरी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर होता है वो, ठीक है, हाँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये एक इक्वेशन होता है, इसी इक्वेशन से निकालना है हम लोगों को। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो तो सेम होने वाला है, एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, और जो u है वो तो जीरो ही नहीं, u नहीं, v जो है वो तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है, v क्या होने वाला है? जीरो ही होने वाला है। हाँ। तो यदि v जीरो होने वाला है तो इक्वेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दोनों केस में जीरो ही होने वाले, तो इक्वेशन होगा माइनस u इक्वल्स टू 2as। अब आप बोलोगे ये स्क्वायर होता है माइनस, अब यू स्क्वायर अंडर रूट लोगे, नेगेटिव, नेगेटिव का अंडर रूट तो नहीं ले सकते ना, बट आप ये भूल रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है, तो माइनस से आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो आपको फाइनली मिलेगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, u डाल के, u पता है, s पता है, u पता है, s पता है, a निकालोगे। सेकेंड केस में u पता है और a पता होगा, s निकालोगे। तो इससे बेटर ऑप्शन होता है रेशो ले लो। कैसे क्या? तो फर्स्ट केस में u1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as1 होगा, a तो सेम होने वाला है। सेकेंड केस में u2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as2 होने वाला है। सिंपली डिवाइड दिस बोथ, मतलब आपको a निकालने की जरूरत ही पड़ती नहीं, ठीक है, जस्ट रेशो लेते तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या आता है आपका u1 स्क्वेयर बाई u2 स्क्वेयर इक्वल्स टू s1 बाय s2। u1 और u2 पता है हमें, थोड़ा मराठी एक्सेंट आ जाता है बीच में, ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड मी एवरीवन। 15 स्क्वेयर अपॉन 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू s1 अपॉन s2। अब s1 क्या है? 5, s2 तो निकालना है, ठीक है। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, इन दोनों को स्क्वायर है, इसके लिए उसका उसके अंदर जो है मतलब ये डिवाइड हो सका है, यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पे नहीं होता, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाई s2, यहाँ पे s2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 9 5 45 मीटर। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
नाउ हाँ बताइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। इसे बहुत ज़्यादा जाके देखते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। हॉट एंड, हॉट मतलब वेरी, वो वाला हॉट नहीं, हॉट मतलब ताकतवर टॉपिक है बहुत ही, एंड ऑल टाइम फेवरेट ATF, ये मेरे से ATF, ठीक है। तो हॉट एंड ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है कौन सा, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्वेश्चन कंफर्म आता ही है, ठीक है। मतलब ये जो स्लाइड्स मैंने दिखाए इससे आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, आएंगे ही 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, अब ये क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तो ये देखो, अब ये बहुत एनिमेशन है, थोड़ा बहुत किया था आपके लिए, ठीक है। दिस इज MUG, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो हमारे पास एक बंदा है, दिस इज वन पर्सन विद अस, इसका नाम क्या रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कंसिडर्ड एज प्रेम, ठीक है। तो एनिमेशन सबसे पहले देख लेंगे। बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है, गया गया गया, रुक गया, वो रुक गया मतलब क्या, v इक्वल्स टू जीरो, इंटरप्रेट इट लाइक दैट, ओके। इनिशियल वेलोसिटी u, कुछ तो होगी उससे, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसलिए तो ऊपर गया, ये प्रेम ने इसे धक्का दिया, ऊपर गया वो, ठीक है। अब क्यों ऊपर गया, वेलोसिटी दी उसे, लेकिन रुका क्यों यहाँ पे वो, इसके वजह से, ये देखो कैसे कर रहा, पगला गया है वो, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी है, ये बता रहा है आपको ग्रेविटी है, इसके लिए वो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन लग, ग्रेविटी लग रही, मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन, बट दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये g लगता ही है, उसकी वैल्यू क्या होती है g की, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। बट हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसे 10 एज्यूम करते हैं, ठीक है। बट यहाँ गो इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको यही कंसिडर करना होता है, क्योंकि तब आपके पास कैल्सी भी होता है, यहाँ पे कैल्सी नहीं होता, तो आपको एज्यूम 10 ही करना होता है, ठीक है। तो समझा कि ये बॉल ऊपर जाके क्यों रुकी, क्योंकि उसे नीचे ग्रेविटेशन पुल कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी फिर ग्रेजुअली वो जीरो को अप्रोच कर गई, ठीक है। फिर ऊपर वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब जो एक्सेलरेशन उसे पहले नीचे खींच रहा था, जिसके वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अभी भी वो उसे नीचे ही खींच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये बॉल फिर से नीचे आने लगेगा और धड़ाम से यहाँ गिर जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि जो एक्सेलरेशन है वो तो कंटिन्यूस रहेगा ना, क्योंकि वो ग्रेविटी है, वो कंटिन्यूस रहेगी, इसके लिए वो ऊपर जाएगा पहले और फिर से नीचे आएगा, बट उसका जो पाथ होगा वो तो सेम लाइन ही होगा, ठीक है, एक लाइन में ही वो जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने 2 डिफरेंट केसेस कंसिडर किए, ठीक है। इसका डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, जो आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे, एक सेकेंड, ये मेरा पहले ये हटा देता हूँ, कहाँ पे गए, हाँ ठीक है, नो प्रीव्यू बंद की गए, हाँ। तो ये जो आप देख रहे हो क्या, डायग्राम, ठीक है, तो एक एक करके उसे समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट्स, पहले डिसाइड करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। नाउ वी विल डिस्कस मोशन फ्रॉम ए टू सी, और उसे डिवाइड करेंगे ए बी टू बी सी, ठीक है। मजे की बात यह है
कि जो भी पैरामीटर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन टाइम मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसका जो भी वेलोसिटी होगा और जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वही सेम जब वो नीचे आएगा, तभी वही सेम पैरामीटर्स रहेंगे उसके, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली उसने 30 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया था, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई ऊपर जाने के बाद, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 25 मीटर। अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे, यू हैव द बेसिक इक्वेशंस, वहां से कैलकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। और ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने की तो जरूरत भी नहीं है, 30 मीटर पर सेकेंड है, 10 से नीचे खींच रहा है मतलब 1 सेकेंड में 10 कम होगा, तो फिर जो 30 होगा 1 सेकेंड के बाद वो 20 हो जाएगा, उसके बाद वो 10 हो जाएगा, उसके बाद वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 2 तक जाने के लिए मतलब वो डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर करता है, और 2 से 3 तक 5 मीटर करता है। मतलब क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम वाइज वो तो कम होते जा रही है। आते समय व्हेन द बॉल इज रिटर्निंग डाउन टू द ग्राउंड, उस वक्त भी जब t इक्वल्स टू 3 पे तो 0 होगा उसकी वेलोसिटी, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो 3 से 4 में फिर से वो 5 मीटर ही कवर करेगा, 4 से 5 फिर से वो 15 मीटर ही कवर करेगा, एंड 5 टू 6 फिर से वो 25 मीटर ही कवर करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमें ठीक है 30 मीटर पर सेकेंड था तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है, विच आर द मोस्ट यूज फॉर्मूलेस, ठीक है। नाउ व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी v तो पता होगी, ठीक है। उसके बाद सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u होती है, u तो पता होगी, v 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन g होता है और g क्या होता है 10, ठीक है। साइन भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। और हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, कौन सा मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वेलोसिटी 0 होने तक उसे कितना टाइम लगने वाला वो निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले, 1 2 3 4 t निकालना है। u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। v क्या है 0 है, u क्या है तो दिया हुआ क्वेश्चन में a इज नथिंग बट g एंड t हमें निकालना है, तो क्या होगा वो माइनस u इज इक्वल्स टू जी टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अब ये माइनस कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के पास भी माइनस साइन होने वाला, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें वो कट कर दिया, एंड t बिकम्स u बाई जी, ठीक है। t क्या होता है u बाई जी। अब जितना टाइम उसे ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने के लिए लगेगा। इसके लिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम जो होगा वो होगा 2u अपॉन जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ए टू बी ही लिखेंगे, हमें फिर से s निकालना है, ठीक है। तो वी विल यूज द इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर 0 होता है, u माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपको फाइनली मिलेगा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। फिर s इक्वल्स टू आता है यू स्क्वायर बाय 2g, और इस s को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट, एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है। यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब हमने देखा कि ए टू बी जाने के लिए से टाइम ऑफ फ्लाइट u बाई जी लगता है, उससे हमने टोटल फ्लाइट टाइम किया 2u बाई जी, टोटल टाइम फॉर फ्लाइट, और एच मैक्स निकाला यू स्क्वायर बाई 2g। अब हम एनालिसिस करेंगे बी से सी तक, मतलब कौन से फैक्टर्स, कौन से कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका समरी चार्ट भी होने वाला, इट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बी से सी देख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब व्हेन यू आर कंसिडरिंग बी टू सी, तब आपको बी इनिशियल जो होगा वो तो 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे तो 0 है,
वी स्क्वायर निकालना है आपको, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आएगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gs, रिप्लेस a विथ g। और इस बार क्या होगा, v की डायरेक्शन तो नीचे होगी, वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसके लिए जो v, और ये v कौन सा v है, मतलब यहाँ पे v, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा होगा, अंडर रूट 2gs, या फिर आप बोल सकते हो एस डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट 2gs, ठीक है। और अभी और एक फॉर्मूला आता है वहां से, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, ये कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, यू तो जीरो होता है, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर आता है, यहाँ से t इक्वल्स टू आता है अंडर रूट 2s बाई जी, एक और g से रिप्लेस कर दो और ऐसे एज इट इज। तो फिर यदि आप कंसिडर करोगे बी टू सी तक, पूरा सी तक आने के लिए, तो टाइम कितना लगेगा, एच मैक्स है ना पूरा, वी हैड कंसिडर दिस कंप्लीटली एज एच मैक्स, ठीक है, टू एच मैक्स अपॉन जी। और यदि आपको फिर कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो 4 होगा, तो वो होगा 4 रूट 8 एच मैक्स अपॉन जी, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी कंपोनेंट्स या फिर जो भी उसकी वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ऊपर जाने के वक्त उस टाइम पे होगी, जैसे यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 2 3 सेकेंड पे, वही सेम वेलोसिटी वही सेम डिस्प्लेसमेंट उसकी होगी नीचे आने वक्त एट 4 5 एंड 6, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर इट, वहां से आपको आसानी हो जाती। और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है उसका एक सेकेंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है, it is in the ratio 1:3:5:7:9, मतलब ऑड नंबर्स के रेशियो होती है उसकी, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द कंसेप्ट विच यू विल नीड सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे है ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रॉपिंग इस पे भी बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हो, जब आप ड्रॉप करते हो ऑब्जेक्ट तब आप कुछ वेलोसिटी देते हो उसे, ठीक है। यदि मेरे को ये पेन है, पेन को मेरे को नीचे डालना है, मेरे को ऐसा पुश करके डालना पड़ता है क्या, नहीं, आई विल जस्ट लीव इट ऑफ, और उसे ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। आपने यदि वेलोसिटी देके ड्रॉप किया, उसे ड्रॉप नहीं बोलते, ठीक है। व्हेन यू आर जस्ट ड्रॉपिंग इट, इट मीन्स दैट योर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। और यदि कोई वेलोसिटी होगी भी डालते समय तो फिर मेंशन कर देंगे क्वेश्चन, but if they had just mentioned object is dropped, it means that it has initial velocity 0, ठीक है। यही एक कंडीशन होती है, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर जो मतलब दूसरा होता है, अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डार्क चुक बोलने लगोगे, बट ठीक है, जस्ट फॉर फन, ये ड्रॉप होता है ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे, तो फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, अंडर रूट 2gh, यहाँ पे h का h मैक्स, या फिर ये जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसने जंप किया, वी विल नॉट से सुसाइड, वी विल से दिस बॉय हैड जंप्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी जब वो नीचे गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2gh, ठीक है। टाइम क्या लेगा उसे गिरने के लिए, अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। इस समय में मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और एक नेट बिछा दूंगा, ठीक है, कुछ ना उसे उसके लिए, जस्ट जोगिंग लिव इट। सो आपको यही याद रखना है कि इनिशियल कंडीशन, मतलब कंडीशन होती है u इक्वल्स टू 0 होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h अपॉन जी, एंड वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh। अब ये सब मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से लिखा है, सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी मैंने ये 2 स्लाइड पे बताया था, ठीक है,
जो भी 2 स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था, हाँ, वो ये 4 पॉइंट्स में कवर हो जाता है। क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, जिस वेलोसिटी आपने वो फेंका था, देन यू कैन कैलकुलेट टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम। या फिर आपको यदि एच मैक्स पता है, वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड यू स्क्वायर अपॉन 2g, फाइनल वेलोसिटी वही इनिशियल वेलोसिटी होती है √2gh। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, पैरामीटर्स ड्यूरिंग असेंडिंग म्हणजे ऊपर जाते वक्त, और डिसेंडिंग मीन्स नीचे आते वक्त, दे ऑल आर सेम। ओके, अब ये सबसे फर्स्ट सवाल है मोशन और ग्रेविटी का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट जस्ट। So let's. A student is throwing ball vertically upwards such that he throws the second ball when the first ball reaches maximum height. If he throw balls at an interval of 3 seconds, the maximum height of the ball is. ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग सा कर दिया होगा। ठीक है, अब देखो, a student is throwing ball vertically upwards such that he throws the second ball when the first ball reaches maximum height. ये ग्राउंड है, ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट बॉल है और यहाँ पे सेकेंड बॉल है। समझा ना, क्यों सेकेंड बॉल है? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है? ये मैक्सिमम हाइट है। तो फिर फर्स्ट बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब सेकेंड बॉल ऊपर जाएगा। और उन्होंने क्या बोला है कि वो जो बॉल है, स्टूडेंट है, जो कोई भी स्टूडेंट एक्सवाइजर है, वो 3 सेकेंड में बॉल छोड़ रहा है। मतलब क्या, ऊपर बॉल गया, फिर दूसरा बॉल कितने टाइम बाद छोड़ेगा? 3 सेकेंड्स के बाद छोड़ेगा। मतलब फर्स्ट बॉल को यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा? 3 सेकेंड लग रहा। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 3 सेकेंड। फॉर्मूला क्या है? T=u/g। आप तो बोलोगे 2u/g बताया था, वो तो कंप्लीट यदि ट्रैवल किया तो होता है ना, मतलब पूरे ट्रैवल के लिए 2u/g फॉर्मूला होता है। बट जस्ट एक साइड ट्रैवल किए तो u/g। ठीक है, T=u/g। वो आप बोलेगे ये यूज निकालना क्या है, वो देखते पहले। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है एच मैक्स के पास? u² / 2g। उसके लिए u निकालना पड़ेगा। u कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूले से निकालेंगे। u क्या आता है? u=gt। तो u² क्या आएगा? gt का स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब g²t² अपॉन 2g। जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिख रहा मैं। तो फिर g 10 कंसिडर करते हैं, दिया भी है उन्होंने। और टाइम क्या है? 3 का स्क्वायर अपॉन 2 5 10, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 45 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। समझा? ये बस कंफ्यूजिंग के लिए आपको इतना घुमा कर बताया है। अप्रोच देख लो आप बस, कि उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब सेकेंड बॉल को थ्रो करेगा। और वो बोले हैं कि 3 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड के बाद वो क्या करते, दूसरा बॉल फेंकते। ठीक, तो 3 सेकेंड में बॉल ऊपर जा रहा, मतलब 3 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। ठीक है, फिर एक बार समझ गया कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितने टाइम में कर रहा है, तो बाकी के इक्वेशन ये तो पता ही है, तो फिर मैथ्स का सब कुछ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अ बॉडी एट रेस्ट फॉल्स टू हाइट h with velocity v if it has to fall down further for its velocity to become 3 times the distance traveled in that interval is। ठीक है, तो उन्होंने दिया है बॉडी रेस्ट से फॉल होती है, मतलब मोशनल ग्रेविटी होने वाली है। ठीक है, और बाद में पूछा है कि वो h v वेलोसिटी, मतलब v वेलोसिटी हो जाती है उसकी। ठीक है, अब उसे v से 3v जाना है। v से कितना जाना है? 3v जाना है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। हमारे पास g है, मतलब एक्सेलरेशन तो g ही लगने वाला है। और क्या है हमारे पास? हाँ ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और ये g। वहाँ से हम s निकाल सकते हैं। वी हैव फॉर्मूला v² = u² + 2as। ठीक है, तो v² क्या है? 3v = v² + 2as, 9v² - v² = 2as।
8v² अपॉन 2g इक्वल्स टू s। अब आप बोलो तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन, क्योंकि h के टर्म्स में दिया है, अब हमें h के टर्म्स में निकालना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, it falls through height h with velocity v, so we have the formula v equals to under root 2gh। ठीक है, सिंपल। तो v² क्या हो जाएगा, 2gh। तो यहीं पे you have to put that 8 into 2gh upon 2g, 2g से 2g cancel, finally you will get s equals to 8h। ठीक है, so questions are simple but you just have to understand the question properly। okay? So here's the question, body starts falling from height h and travels distance h by 2 during the last second of its motion, then the total flight in seconds is। ठीक है, तो उन्होंने बोला है h हाइट है पूरी, इसे दो पार्ट में डिवाइड करो तो h बाई टू h बाई टू। ठीक है, ये जो h बाई टू है लास्ट सेकेंड में मुझे एक सेकेंड में वो h बाई टू ट्रैवल करता है। ठीक है, एक सेकेंड में h बाई टू ट्रैवल करता है। इट मीन्स दैट यदि पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो फिर इतना जो है पोर्शन h बाई टू का ऊपर वाला, उसे कवर करने में उसे t-1 सेकेंड लगेगा। एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल फॉर्म टू इक्वेशन। सबसे पहले कौन सा, t इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2h अपॉन g। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, t² g अपॉन 2 इक्वल्स टू h। इसी को ही लिख सकते हैं h इक्वल्स टू हाफ g t²। ठीक है, और एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का। इनिशियली ये तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हम h बाई टू तो कैलकुलेट करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ g, t क्या है, इतना डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए उसे t-1 सेकेंड लगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से h इक्वल्स टू आ जाएगा g t-1 स्क्वायर। ऑप्शन में क्योंकि h नहीं है, हमें वो कैसे भी कैंसिल आउट करना है, यू कैन इक्वेट दिस बोथ h। ठीक है, ये दो h को आप इक्वेट कर सकते हो, क्या आएगा फिर, हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू जी t-1 स्क्वेयर, जी से जी कट गया, इट मीन्स t² इक्वल्स टू t² प्लस 1 माइनस 2t। ठीक है, मतलब t² 2t² प्लस 2 माइनस 4t। ओके, तो इसके बाद वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे सॉल्व करना है। क्या बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, t² माइनस 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, t इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16, 4 टू 8। ठीक है, तो फिर ऑप्शन है क्या, इससे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हो 2√2 बाई 2, 2 प्लस माइनस √2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, 2 माइनस √2 तो नहीं है, तो फिर सी ऑप्शन है, 2 प्लस √2। समझा, ये तो आपने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा वो भी बता देता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अभी यदि आपको चाहिए
तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है, और वहाँ से हमें ये आंसर आ गया। समझा? मतलब अप्रोच देख लो, समझ लो कैसे करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, सीईटी में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि कौन से तरह के क्वेश्चंस करने होंगे आपको, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू पे फोकस करो, जो मैं पीवाईक्यू ले रहा हूँ उसे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ओके। सो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टावर ऑफ हाइट एच, टोटल डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड। ये लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर किया है उन्होंने, वो फर्स्ट सेकंड में किया है, ठीक है। तो टावर ऑफ हाइट दिया उन्होंने एच, और क्या बोला है कि जो 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर करेंगे, लेट इज कंसीडर एस, वो लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड कंसीडर करके, कौन सा nth सेकंड, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सेम एस डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। लास्ट सेकंड, ठीक है, 10th सेकंड, 10th सेकंड मतलब क्या होता है, 9 से लेकर के 10th सेकंड। तो फिर लास्ट सेकंड मतलब क्या, सेकंड लास्ट टू लास्ट सेकंड, ठीक है। मतलब टोटल टाइम यदि 10 सेकंड्स का है, सो 10th सेकंड में कितना ट्रैवल किया, दैट इज नथिंग बट लास्ट सेकंड, ठीक है। तो फिर 3 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, एस इक्वल्स टू यू टी, यू तो जीरो है तो पूरा जीरो आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर, ओके, हाफ जी 10 है, 3 स्क्वेयर 9, 2 5 ज़ा 10, सो एस बिकम्स 45 मीटर। और इतना ही डिस्टेंस उसने लास्ट सेकंड में ट्रैवल किया। सो यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, लास्ट सेकंड मतलब लास्ट नहीं, nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मतलब 5th to 6th सेकंड, मतलब 6th सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 8th to 9th सेकंड, 9th सेकंड में कितना ट्रैवल किया। वैसे ही उसके लिए फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, एन मतलब 9th सेकेंड, 8th सेकेंड, मतलब दैट सेकेंड, उस सेकेंड पे, ठीक है। तो हमें लास्ट सेकेंड में निकालना है, लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस कितना 45 मीटर तो कवर हुआ है, u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, ये तो u जीरो हो गया, यहाँ से क्या होगा, जी 10 होगा 9, ठीक है, इक्वल्स टू, आप कैलकुलेट कर लेना, वही आएगा +1 -1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, n इक्वल्स टू 10/2 5 सेकेंड। अब n सेकेंड वो तो लास्ट सेकेंड है, लास्ट सेकेंड मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 5 सेकेंड। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता चल गया, विच इज 5 सेकेंड। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू √2h/g, याद आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट यूज है उसका, जी टी स्क्वेयर बाई 2 इक्वल्स टू एच, जी 10 है, टी 5 का स्क्वेयर अपॉन 2, मतलब ये 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझा कैसे सॉल्व करने, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको एक बार मतलब सॉल्व करते हुए समझ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देन आप फोकस्ड रहते हैं उस पर, ठीक है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन विच हैड सॉल्व फॉर दिस वीडियो। नाउ और क्वेश्चंस है, आई विल शो यू द क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम ही है, टेक्स t seconds to reach the ground height of body t/2 second after its release, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस है, मतलब 4-5 क्वेश्चंस हो गए। 19 we had done till 19, no? तो 24, 19 24, 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने कौन से टॉपिक कवर किए, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस एंड बेसिक क्वेश्चंस, मतलब मोशन इन 1D we had completed। तो मोशन इन 2D एंड सर्कुलर मोशन बाकी है। 2D में भी बस प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है जो एग्जाम में आता है, एंड सर्कुलर मोशन वो भी सिंपल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है,
एंड स्टे ट्यून, ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल तो मिल ही रहा है सीईटी के लिए। और मतलब आपको कौन से क्वेरीज हो गए, डाउट्स हो गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में भी हो या होमवर्क क्वेश्चंस में भी हो डाउट्स, तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हो, _Mayur_Alder__, सो कैन कनेक्ट मी ऑन दैट, आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम। बस ठीक है, फिर सब्सक्राइब करो चैनल के लिए। यू विल गेट हेयर मोर 2024 क्वेश्चंस, 21 to 23 क्वेश्चंस एज वेल। तो मतलब आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। हिट द लाइक बटन यदि आपको पसंद आया तो वीडियो, ठीक है। I am really sorry for the technical problems you may have faced while watching the video in terms of quality, or some of the slides were also not proper, one or two slides, so I am really sorry for that. You will not see all these things in next upcoming videos, cause this is the first video I am shooting and posting it, so I think you may understand me. Also, your suggestions and improvements for the video, you may DM me directly on Insta, or you may post the comments, and feel free to ask me questions on Insta. I'll definitely solve your questions and help us growing by click on the subscribe button. Next part of this video will be shortly uploaded. So finally, thank you. We will meet in next video. Okay, bye.